हम आज सुबह मसीह की शिक्षा को जारी रखेंगे. This morning we are going to continue with the study of the doctrine of Christ. And today we are going to learn about the offices of Christ. आज हम मसीह के अलग-अलग औहदों के बारे में हम सीखेंगे. See, last two Sundays we studied about the person of Christ. हमने पिछले दो इतवार को हमने मसीह के व्यक्ति या व्यक्तित्व के बारे में सीखा. We learned about his names. हमने उनके नामों के बारे में सीखा पहले. We learned about his two natures. हमने उसके दो चरित्र के बारे में सीखा. We learned about his two states last week. हमने उसकी दो दशाओं के बारे में सीखा पिछले हफ्ते. Now we are going to study about the work of Christ. अब हम मसीह के कार्यों के बारे में सीखेंगे. So we are moving from who he is to what he did and what he is doing. तो अब हम अपने ध्यान को वो कौन है से लेकर उसने क्या किया और क्या करेगा उस पर, या वो क्या कर रहा है अभी उस पर हम लगाएंगे. Therefore, today we are going to study about the three offices of Christ. उसीलिए हम आज मसीह के तीन औहदों के बारे में सीखने जा रहे हैं. The Bible talks about his three offices. Bible ये मसीह यीशु के तीन औहदों के बारे में सिखाता है. कौन से है वो? What are those? Of prophet, of priest and of king. क्योंकि वो उसके पास भविष्यवक्ता का औधा है, उसके पास याजक का औधा है और राजा का औधा है. Three offices. So let's start with this prophetic office. आए हम उसके भविष्यवक्ता के औधे से हम शुरू करेंगे. So in the Old Testament, we see that a prophet was someone who received divine revelations through dreams, visions or verbal communications. देखिए पुराने नियम में एक भविष्यवक्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वप्न या दर्शन या मौखिक संदेश के द्वारा दिव्य प्रकाशन को पाता है, परमेश्वर से प्रकाशन को पाता है. And he passes them on to the people either orally or visibly through his prophetic actions. और वो उस संदेश को, उस प्रकाशन को लोगों तक पहुंचाता है मौखिक रूप से या अथवा अपने कार्यों के द्वारा भी. So we will look at some of the verses. हम कुछ आयतों को देखेंगे. गिनती के किताब 12वां अध्याय और 6वां आयत. Let's look at Numbers and verses 12 and verse 6. गिनती का किताब 12वां अध्याय और 6वां आयत. It says, and he said, hear my words. So, hear my words. If there is a prophet among you, I, the Lord, make myself known to him in a vision. I speak with him in a dream. And it says that, God speaks to his prophet through visions and dreams. वहाँ ऐसा लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा. तो परमेश्वर अपने नबी या भविष्यवक्ता के साथ दर्शन या स्वप्न के द्वारा वो बात करते थे. Let's also look at Ezekiel chapter 3 and verse 4. एहेजकियल का किताब 3रा अध्याय और उसका 4था आयत हम पढ़ेंगे. And he said to me, Son of man, go to the house of Israel and speak with my words to them. फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर
उनको मेरा वचन सुना। तो परमेश्वर सिर्फ स्वप्न या दर्शन के द्वारा नहीं, वचन के द्वारा भी भविष्यवक्ता से बात करते थे। सो द God spoke with his prophets not just through dreams and visions, but majorly through his words. And one of the most important tasks of the prophet was to interpret the moral and spiritual aspects of the law. Uh, एक भविष्यवक्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम में से एक है कि वो व्यवस्था में पाए जाने वाले आत्मिक और नैतिक बातों का अर्थ वो लोगों को समझाए। आत्मिक और नैतिक बातों का अर्थ वो समझाए। He is able to interpret the moral and spiritual aspects of God's law. Now coming to Christ, the Old Testament had already predicted about his coming as a prophet. अब जहां तक मसीह की बात है, पुराने नियम ने ये घोषणा कर दी गई थी, पुराने नियम में ये घोषणा कर दी गई थी कि वो एक भविष्यवक्ता के रूप में आएगा। Moses had prophesied about this to the people of Israel. मूसा ने इसकी भविष्यवाणी इज़राइल के लोगों को की थी। कहाँ लिखा है वो? व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय और उसका 15वां आयत। Deuteronomy chapter 18 and verse 15. The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your brothers. It is to him you shall listen. This is what Moses said to the people of Israel, that God is going to raise up a prophet like me from among you, and to him you shall listen. यहाँ पर मूसा लोगों से कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा या भविष्यवक्ता को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। ऐसा वहां पर लिखा गया है। How do we know that this prophecy is about Jesus? हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो भविष्यवाणी है वो यीशु मसीह के बारे में है? Because the apostle Peter makes clear that this prophecy was about Jesus in Acts chapter 3. क्योंकि प्रेरित पतरस ये स्पष्ट करता है प्रेरितों के कृत्य उसके 3 अध्याय में कि ये जो भविष्यवाणी है वो यीशु मसीह के बारे में था। Let's read that Acts chapter 3. आइए हम प्रेरितों के कृत्य और उसके 3 अध्याय में जाएंगे। Let's read verse 18. हम पहले 18वें आयत को पढ़ेंगे वहां पर। But what God foretold by the mouth of all the prophets, that his Christ would suffer, he thus fulfilled. This is what Peter is saying in his second sermon. पतरस अपने दूसरे प्रचार में कहता है, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। ठीक है? Then he quotes was what Moses had said in Deuteronomy. उसके बाद वो मूसा ने जो भविष्यवाणी दी थी व्यवस्था विवरण में, उसका उल्लेख करता है। कहां पर? 22वें और 23वें आयत में। In verse 22, Moses said, "The Lord God will raise up for you a prophet like me from your brothers. You shall listen to him in whatever he tells you." वो कहता है जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। ऐसे करके वहां पर कहा गया है। And then verse 23 says, "And it shall be that every soul who does not listen to that prophet shall be destroyed from the people." परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उसे भविष्यवक्ता की ना सुने, उस भविष्यवक्ता की ना सुने, लोगों में से नष्ट किया जाएगा। And Peter says that not just Peter says that not just Moses but many other prophets had talked about the suffering of Christ. और पतरस कहता है कि सिर्फ मूसा ने नहीं, और भी बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने मसीह के बारे में ये चीजों को बोला था।
So Acts 3 and verse 24, and all the prophets who have spoken from Samuel and those who came after him also proclaim these days. और शमूएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ता बोले उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है. So it is clear that the Old Testament spoke about Christ being a prophet. तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पुराना नियम ने ये बात हमें बताया है कि मसीह एक भविष्यवक्ता के रूप में आएगा. Now Jesus Christ himself spoke of himself as a prophet. यीशु मसीह ने खुद ने अपने आप के बारे में अपने आप को एक भविष्यवक्ता बताया. कहां पर बताया? लूक चैप्टर 13 एंड वर्स 33. लूका का 13वां अध्याय और उसका 33वां आयत. लूक चैप्टर 13 एंड वर्स 33. Jesus is saying this, nevertheless I must go on my way today and tomorrow and the day following, for it cannot be that a prophet should perish away from Jerusalem. तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए. He says that just as Jerusalem has a history of killing its prophets, he also being a prophet will be killed in Jerusalem. वो कह रहा है कि यरूशलेम का एक इतिहास है. यरूशलेम अपने भविष्यवक्ताओं को मार देता है. तो वो ये कह रहा है क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता है, उसकी मृत्यु भी यरूशलेम में होगी. Like every prophet, Jesus also claimed that he is bringing a message from God. हर भविष्यवक्ता के जैसे मसीह यीशु खुद भी ये दावा करता है कि वो परमेश्वर की ओर से एक संदेश लेकर आ रहा है. कहाँ उसको पढ़ सकते हैं? यूहन्ना का 12वां अध्याय और उसका 49 और 50वां आयत. We'll read John chapter 12 and verse 49 and 50. For I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me has himself given me a commandment, what to say and what to speak. And I know what that his commandment is eternal life. What I say therefore, I say as the Father has told me. क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूं. और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं. ठीक है? So that's what we see there. He also foretold things about the future. एक भविष्यवक्ता के जैसे वो भविष्य में आने वाले बातों की भविष्यवाणी भी करता है. Where do we find that? For example, Luke chapter 19, लूका का 19वां अध्याय एक उदाहरण है. उसका 41वीं आयत से 44वीं आयत को हम पढ़ेंगे. We'll read verse 41 to 44. Now here he is talking about the destruction of Jerusalem, which actually happened after his death in 70 AD. यहाँ पर वो यरूशलेम के नाश का भविष्यवाणी कर रहा है, जो उसके मृत्यु के बाद हुआ. 70 AD में ये बात हुआ. तो वहां पर वो क्या कह रहे? देखो. And he says, and when he drew near and saw the city, he wept over it, saying, would that you, even you, had known on this day the things that make for peace, but now they are hidden from your eyes. For the days will come upon you when your enemies will set up a barricade around you and surround you and hem you in on every side and tear you down to the ground, you and your children within you, and they will not leave one stone upon another in you, because you did not know the time of your visitation. वो कहता है जब वो निकट आया तो नगर को, यानी यरूशलेम नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी
मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। He taught with great authority than all compared to all the other existing leaders of his day. वो अपने दिनों में उस समय के मौजूदा अगुवों के मुकाबले अधिकार के साथ शिक्षा देता था। वो इस बात को दर्शाता था कि वो एक भविष्यवक्ता है। It showed that he was a true prophet of God. Therefore, the people recognized him as a prophet. इसलिए लोगों ने इस बात का अंगीकार किया कि ये एक भविष्यवक्ता है। कहाँ पढ़ सकते हैं हम उसको? मत्ती का 21वां अध्याय 11वां आयत। We can read that in Matthew chapter 21 and verse 11. It says, and the crowd said, this is the prophet Jesus from Nazareth of Galilee. और लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। Also read verse 45 and 46. 45 और 44वें आयत को भी हम पढ़ेंगे। 46वें आयत को, when the chief priests and the Pharisees heard his parables, they perceived that he was speaking about them, and although they were seeking to arrest him, they feared the crowds because they held him to be a prophet. प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। Jesus Christ continued his prophetic ministry after his ascension by the operation of the Holy Spirit through the apostles. यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण के बाद अपने भविष्यवक्ता की सेवकाई जारी रखी प्रेरितों के द्वारा, और ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से किया गया। See what Jesus told his apostles in John chapter 16 and verse 12 to 14. यीशु मसीह ने देखिए अपने चेलों से क्या कहा था यूहन्ना के 16वें अध्याय और उसके 12वें आयत से 14वें आयत में। John 16 and verse 12 to 14. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will declare to you the things that are to come. He will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you. वो कहता है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। And the gospel in the New Testament is the apostolic account of Jesus' words and deeds. तो हम नए नियम के अंदर जो सुसमाचार की किताबों को हम पढ़ते हैं, वो प्रेरितों की गवाही है कि यीशु के वचन क्या थे और उन्होंने किन किन कार्यों को किया। That is why the apostle John ends his gospel by saying something. उसीलिए यूहन्ना अपने सुसमाचार को खत्म कर क्या बोलता है? आखिरी आयत पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार 21वां अध्याय 25वां आयत, John chapter 21 verse 25. Now there are also many other things that Jesus did, were every one of them to be written, I suppose that the world itself could not contain the books that could be written. और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। ऐसा लिखा है। And Jesus' prophetic ministry continues today. यीशु मसीह का भविष्यवक्ता का जो सेवकाई है वो आज भी जारी है। कहाँ जारी है? Every day when we read our Bibles and the Holy Spirit illumines our mind. जब हम हमारे बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमारे मन को जब ज्योतिर्मय करता है बाइबल को समझने के लिए, तो
वो प्रकाशन कहाँ से आता है? यीशु मसीह की ओर से आता है। वो हमें संदेश दे रहा है वचन के द्वारा. So the Lord Jesus is speaking to his people through the illumination of the Holy Spirit. And Jesus' prophetic ministry continues every Sunday like this when I preach from the word of God. परमेश्वर का भविष्यवक्ता का सेवकाई जारी रहता है वचन की सेवकाई के द्वारा. सुसमाचार का जब प्रचार होता है, यहाँ पर जब हम सिखाते हैं सुसमाचार, तो यीशु मसीह की जो भविष्यवक्ता की सेवकाई है, परमेश्वर के संदेश को उनके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है. Another office that Christ holds is that of the priestly office. मसीह एक और औधा संभालते थे, वो है याजक का औधा. पहले भविष्यवक्ता, अब याजक. First prophet and now priest. Let's start by looking at a couple of differences between a prophet and priest. हम शुरू करेंगे भविष्यवक्ता और याजक के बीच में दो मुख्य फर्क को समझाकर. First, the prophet was God's representative who went to the people and spoke God's message to them. भविष्यवक्ता परमेश्वर का प्रतिनिधि है, परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है और वो लोगों के पास जाकर परमेश्वर के संदेश को सुनाता है. On the other hand, the priest was the people's representative before God. और याजक जो है वो लोगों का प्रतिनिधित्व करता है परमेश्वर के सामने. समझ गए ये फर्क? He offers their gifts and sacrifices to God. वो उनके लिए परमेश्वर के सामने जाकर भेंट और पाप बलि को चढ़ाता है. And he also intercedes before God on behalf of his people. और परमेश्वर के सामने जाकर अपने लोगों के लिए विनती करता है. ये याजक की सेवकाई. This is the ministry of the priest. Second, दूसरा जो फर्क है, the prophet taught the people about the moral and spiritual elements in God's law. The priest taught the people about the ceremonial elements of God's law. देखिए, भविष्यवक्ता जो है परमेश्वर की व्यवस्था के नैतिक और आत्मिक पहलुओं के बारे में उनको समझाता है, लेकिन याजक जो है वो आराधना से संबंधित विधियों के बारे में उन्हें सिखाता है. But the Bible teaches us that Christ functions both as a prophet and priest. लेकिन बाइबल हमें सिखाता है कि मसीह दोनों भविष्यवक्ता और याजक के रूप में कार्य करता है. दोनों औहदे उसके पास है. Where in the Old Testament do we see Christ predicted as priest? हम पुराने नियम में कहाँ पढ़ते हैं ये घोषणा हम पाते हैं कि मसीह एक याजक के रूप में आएगा. We see this especially in Psalm 110. हम इसको खासकर हम देख सकते हैं भजन संहिता 110 में. Let us read verse 1. हम पहले आयत को पढ़ेंगे. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं. Now in the days of Jesus Christ, this verse was believed to be a prophecy about the coming Messiah. यीशु मसीह के दिनों में इस आयत को आने वाले मसीहा की भविष्यवाणी समझी जाती थी. And this coming Messiah would be a king. और ये आने वाला मसीहा एक राजा होगा. Read verse 2. दूसरे आयत को पढ़ेंगे. The Lord sends forth from Zion your mighty scepter. Rule in the midst of your enemies. वो कहता है तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा. तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर. But in the same psalm, God says that this Messiah will also be a priest forever. इसी भजन संहिता में परमेश्वर ये भी कहता है
कि ये आने वाला मसीहा सर्वदा का याजक भी है। रीड वर्स 4, चौथे आयत को पढ़े। The Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever after the order of Melchizedek. यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा, तू मेल्कीजेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। And more than 1,000 years later, the author of Hebrews says that Christ is that promised priest forever. और 1000 साल के बाद, इस भविष्यवाणी के 1000 साल बाद, इब्रानियों का किताब लिखने वाले लेखक बोलता है कि ये सर्वदा का याजक और कोई नहीं पर मसीहा है या यीशु मसीह है। लेट्स रीड दैट। आए हम उसको पढ़े। इब्रानियों का 5वां अध्याय और उसका 5वां और 6वां आयत। Hebrews chapter 5 and verse 5 and 6. So also Christ did not exalt himself to be made a high priest, but was appointed by him who said to him, You are my son, today I have begotten you. As he says also in another place, now he's quoting Psalm 110, You are a priest forever after the order of Melchizedek. वो कहता है वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। वहां पर वो भजन संहिता 2 कोट कर रहा है। फिर बोलता है इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, अब वो भजन संहिता 110 बोल रहा है, तू मल्कीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। He is saying that God who called Christ his son has also appointed him as a priest forever. वो कह रहा है यहाँ पर कि जिस परमेश्वर ने मसीह को अपना पुत्र बुलाया, उसी परमेश्वर ने उसको सर्वदा के लिए एक याजक भी ठहराया है। So Christ's priesthood was predicted in the Old Testament. तो मसीह का जो याजक बनना है वो पुराने नियम में उसकी घोषणा पहले से हो चुकी है। In the Old Testament we see that the primary responsibility of the priest was to offer sacrifices on behalf of the people for their sins. पुराने नियम में हम देखते हैं कि एक याजक की मुख्य जिम्मेदारी ये है कि वो अपने लोगों के पाप के लिए बलिदानों को अर्पण करे। But those sacrifices in the Old Testament were only pointing forward to the great sacrifice that Christ offered. लेकिन पुराने नियम में हम जो बलिदानों को देखते हैं वो उस बड़े बलिदान के तरफ इशारा करते हैं जिसको मसीह ने दिया। पुराने नियम के बलिदान यीशु मसीह के बड़े बलिदान के तरफ इशारा करते हैं। So the Old Testament sacrifices point to the great sacrifice that Christ offered. As the great high priest, he offered the ultimate sacrifice for the sins of his people. महान मुख्य याजक होने से मसीह यीशु ने अपने लोगों के पापों के लिए एक अंतिम बलिदान चढ़ाया। कहाँ हम उसको पढ़ते हैं? इब्रानियों का 9वां अध्याय 24 से लेकर 26। Let's read Hebrews chapter 9 and verse 24 to 26. For Christ has entered not into the holy places made with hands, which are copies of the true things, but into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf. Nor was it to offer himself repeatedly, as the high priest enters the holy places every year with blood not his own. So Christ did not offer a sacrifice again and again like the priests of the Old Testament, for then he would have had to suffer repeatedly since the foundation of the world. But as it is, he has appeared once for all at the end of the ages to put away sin by the sacrifice of himself. So Jesus presents the sacrifice for his people. He is the priest. He is also the sacrifice. वो कहता है क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया। तो जैसे याजक जो है तंबू में प्रवेश करते हैं या मंदिर में प्रवेश करते हैं, वो बोलता है कि यीशु मसीह
मंदिर में प्रवेश नहीं, स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। मंदिर और तंबू तो सिर्फ स्वर्ग का एक परछाई है। यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग में गए, ये नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसे कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। तो वो पुराने नियम की याजक के अनुसार हर साल बार बार बलि चढ़ाने नहीं जाता है, उसने एक ही बार बलि चढ़ाया। क्या लिखा है? नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। वो महायाजक भी था और उसने अपना ही बलि चढ़ाया अपने अपने लोगों के पापों के लिए। सो Christ offered himself as a sacrifice to put away our sins. मसीह ने हमारे पापों को दूर करने के लिए अपने आप को बलिदान किया। That is why Christ is called the Lamb of God in John chapter 1 verse 29, and is called our Passover Lamb in 1 Corinthians chapter 5 and verse 7. उसीलिए मसीह के बारे में ये कहा जाता है यूहन्ना के पहले अध्याय 29 आयत में कि वो परमेश्वर का मेमना है, और पहले कोरिन्थी के 5वें अध्याय 7वें आयत में लिखा गया है वो हमारे फसह का मेमना है। Although the book of Hebrews is the only book in the New Testament where Christ is called a priest. देखिए, नए नियम में एक ही किताब है जहां पर यीशु मसीह को याजक कहा गया है straight away, वो है इब्रानियों का किताब। But his priestly work of offering the atoning sacrifice for his people is mentioned in many other books. लेकिन उसका याजक का जो काम है, अर्थात अपने लोगों के पश्चाताप के लिए बलि चढ़ाने का जो उसका काम है, उसका उल्लेख दूसरे कई किताबों में किया गया है, जैसे कि उदाहरण के रूप में मरकुस का 10वां अध्याय और 45वां आयत। फॉर एग्जाम्पल मार्क चैप्टर 10 एंड वर्स 45, क्या लिखा है वहां पर? For even the Son of Man came not to be served but to serve and to give his life as a ransom for many. क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों के छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। Let's also read Ephesians chapter 5 and verse 2. एफेसियों का 5वां अध्याय और दूसरा आयत पढ़ेंगे। And walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। In the Old Testament we also see that the priest interceded for his people. तो हम पुराने नियम में ये भी देखते हैं कि एक याजक जो है अपने लोगों के लिए परमेश्वर के सामने जाकर विनती भी करता है। The New Testament teaches us that Christ also as priest makes intercession for his people. नया नियम हमें यह सिखाता है कि मसीह ने भी एक याजक होने के कारण अपने लोगों के लिए परमेश्वर के सामने विनती किया। कहाँ हम इसको पढ़ते हैं? पहला यूहन्ना 2 अध्याय और पहला आयत। 1 John chapter 2 and verse 1. पहला यूहन्ना 2 अध्याय पहला आयत पढ़ूंगा। My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। Now the Greek word used there for advocate is parakletos.
वहां पर जो शब्द उसने इस्तेमाल किया है सहायक, आ, उसका उसका जो यूनानी शब्द है वो है पैराक्लीटोस। और इस शब्द का मतलब इंग्लिश में क्या बोला गया है? एडवोकेट या वकील। ठीक है, इज एन एडवोकेट। सो व्हेन वी सिन, क्राइस्ट इज आवर हेल्पर और एडवोकेट। जब हम पाप करते हैं तो यीशु मसीह हमारा सहायक अर्थात हमारा एडवोकेट या वकील है। ठीक है, वाई डू वी नीड ए हेल्पर और एडवोकेट? हमें एक सहायक या एक एडवोकेट की जरूरत कब पड़ती है? व्हेन वी सिन, हम जब पाप करते हैं, Satan, God's law and our own conscience charges us with sin. जब हम पाप करते हैं, शैतान, परमेश्वर की व्यवस्था और हमारा खुद का विवेक भी हम पर दोष लगाता है कि तुमने पाप किया है। ठीक है, because but because Jesus had sacrificed himself for the forgiveness of our sins, he defends us और advocates our case। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने अपना खुद का बलिदान दिया हमारे पापों के क्षमा के लिए, तो वो हमारे बचाव पक्ष में खड़ा होता है या हमारे केस के लिए वो वकालत करता है। बोले दाम तो मैंने चुका दिया, इसको छोड़ दो अभी। I have paid the price, release this man. And on the basis of his sacrifice, he secures our forgiveness. और उसके बलिदान के आधार पर वो हमारी क्षमा को परमेश्वर से सुनिश्चित करता है। This is his work of intercessory prayer. ये उसके बिजवाई की प्रार्थना का कार्य है। His intercessory work is more than just prayer. उसका जो बिजवाई का जो काम है वो प्रार्थना से ज्यादा है। He not only secures forgiveness, he also claims spiritual blessings for his people on the basis of his sacrifice. वो सिर्फ क्षमा सुनिश्चित नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर से अपने लोगों के लिए सारे आत्मिक आशीषों को लेकर आता है। बोले मेरे लोगों के लिए सारे आत्मिक आशीष दो, क्योंकि मैंने उनके पापों का दाम चुका दिया है। And one more thing, एक और बात, Christ's intercessory work is only for the elect of God. मसीह का जो बिजवाई का जो काम है वो सिर्फ परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए है। The elect of God who are already believers and also for those who are yet to believe. चुने हुए लोग वो है जो आज विश्वास करते हैं और जो कल विश्वास करेंगे, उनके लिए वो बिजवाई करता है। Let me read some verses which talk about Christ's intercessory work. मसीह के बिजवाई के कार्य के बारे में कुछ आयतों को मैं पढ़ूंगा। Let's read Romans chapter 8 and verse 33 and 34. रोमियो का 8वां अध्याय और उसका 33 और 34 पढ़ेंगे। It says, who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। यूहन्ना का 17वां अध्याय और 17वां आयत पढ़ेंगे। लेट्स रीड जॉन चैप्टर 17 एंड वर्स 17। उस अध्याय में पूरा यीशु मसीह बिजवाई की प्रार्थना करता है अपने लोगों के लिए। So in that chapter, it is the high priestly prayer of Jesus Christ. 17वें आयत में देखिए क्या लिखा है। Let's see what he says in verse 17. He prays to God, sanctify them in the truth. Your word is truth. So Jesus is praying for the sanctification of his people through the word of truth. वहां पर लिखा है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो वहां पर
यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करता है अपने चेलों के लिए, बोलता है कि उन्हें तू पवित्र बना अपने वचन के द्वारा। एंड देन वर्स 20, और फिर ये अभी उसने किसके लिए प्रार्थना किया? अपने चेलों के लिए। Who did he pray for right now? For his disciples. अब वो प्रार्थना करेगा उन लोगों के लिए जो इनके संदेश को सुनकर विश्वास में आएंगे। Now he is going to pray for those who will come to faith through their preaching. वो कहां पर है? 20वां आयत पढ़े। Let's read verse 20. I do not ask for these only. That means I am not asking only for these disciples of mine, but also for those who will believe in me through their word. वो कहता है कि मैं केवल इन्हीं के लिए, यानी मेरे अभी जो चेले हैं उनके लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। थर्ड, तीसरा, नाउ वी कम टू क्राइस्ट किंगली ऑफिस। अब मसीह के राजत्व के ओहदे पर आएंगे। The kingship of Christ was spoken about in many parts of the Old Testament. यीशु मसीह के राजत्व के बारे में पुराने नियम के बहुत से आयतों में लिखा गया है। 2 आयतों को मैं पढ़ूंगा। लेट्स रीड 2 वर्सेस। मीका का 5वां अध्याय और उसका दूसरा आयत। मीका चैप्टर 5 एंड वर्स 2। बट यू, O Bethlehem, so Bethlehem is the birthplace of Jesus Christ. O Bethlehem Ephrathah, who are too little to be among the clans of Judah, very small place in the region of Judah. For you, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from of old, from ancient days. So here from Bethlehem will come a ruler, a king over Israel, and his coming forth is not from recent days, but it's from old, from ancient of days, from eternity. वहां पे लिखा है, हे बेथलेहेम एप्राता। आप सब जानते हैं यीशु मसीह का जन्म बेथलेहेम में होता है। यदि तो ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, यहूदा के प्रदेश में एक छोटा सा जगह है बेथलेहेम, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, यानी उन पर राज्य करेगा। और उसका निकलना प्राचीन काल से है, वरन अनादि काल से होता है। वो आज या कल नहीं आया है, वो प्राचीन काल से उसका आना है। इन द न्यू टेस्टामेंट क्राइस्ट किंगडम इज कॉल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। जब हम नए नियम में आते हैं तो मसीह के राज्य को परमेश्वर का राज्य अथवा स्वर्ग का राज्य कहते हैं। वी कॉल इट द किंगडम ऑफ गॉड और द किंगडम ऑफ हेवन। This kingdom was first established in the hearts and lives of those who believed in him. इस राज्य की स्थापना पहले कहां पर होती है? सबसे पहले इस राज्य की स्थापना होती है उस पर विश्वास करने वाले लोगों के हृदयों में और उनके जीवनों में। The kingdom of God is a present spiritual reality for all believers. परमेश्वर का राज्य वर्तमान में एक आत्मिक अनुभव है हर विश्वासी के लिए। See what Paul says in Colossians chapter 1 and verse 13 to 14. हम कोलोसियों के पहले अध्याय और उसके 13वें और 14वें आयत को हम पढ़ेंगे। God, he has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved son. पौलुस कहता है उसी ने, यानी किसने? परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। So God has rescued believers from the domain of darkness and transferred them to the kingdom of his beloved son. यहां पर लिखा है परमेश्वर ने विश्वासियों को अंधकार के वश से छुड़ाया और उन्हें उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। And in Christ's kingdom, what do they experience? और वहां पर किस चीज का अनुभव करते हैं वो? We read verse 14, हमने पढ़ा, in whom we have redemption, the forgiveness of sin, जिसमें हमें छुटकारे अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। So in Christ's kingdom
we experience redemption, or in other words, freedom from slavery to sin and Satan. हम परमेश्वर के राज्य में या मसीह के राज्य में किस चीज का अनुभव करते हैं? छुटकारे का अनुभव करते हैं। छुटकारे का मतलब क्या है? पाप और शैतान के दासत्व से हमको छुड़ा लिया गया है। They experience forgiveness of sins. There is no more any guilt of sin. हमें पापों से क्षमा मिली है। तो जो विश्वासी है, जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, उनको पाप का दोष का अनुभव नहीं होता है। दोष हमेशा उनके विवेक में लगा नहीं रहता है। If we experience this, then we are in the kingdom of God. अगर हम इसका अनुभव कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य में हैं। After his resurrection and ascension, Jesus was given total authority over the universe. देखिए, उसके पुनरुत्थान और उसके स्वर्गारोहण के बाद यीशु मसीह को इस संसार पर पूरा अधिकार दिया गया। कहाँ हम उसको पढ़ सकते हैं? Let's read Ephesians chapter 1 verse 20 to 22. एफेसियों का पहला अध्याय और उसका 20 से लेकर 22वां आयत हम पढ़ेंगे। That he, that means God, worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion and above every name that is named, not only in this age but also in the one to come. So Jesus is seated on the right hand of God. He rules over all the evil spiritual powers. Verse 22 says, and he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. वहां पर लिखा गया है, जो उसने यानी परमेश्वर ने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने और सब प्रकार की प्रधानता, अब यहाँ पर दुष्ट आत्मिक ताकतों के बारे में बात कर रहा है, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। अब देखिए 22वें आयत में क्या, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया और ये उसकी देह है। Verse 22 says, God put all things in subjection under his feet. 22वां आयत कहता है कि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है। This is talking about all his enemies. यहाँ पर उसके दुश्मनों के बारे में बात किया जा रहा है। Rebellious human beings, जो मनुष्य उसके खिलाफ बलवा करते हैं। Evil spiritual forces, दुष्ट आत्मिक ताकतें, and even this natural world, और ये प्रकृति भी। But Paul says God gave Jesus as head to the church, which is his body. लेकिन पौलुस क्या बोलता है? परमेश्वर ने मसीह को शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया जो उसकी देह है। The church is not under his feet, but the church is his body. देखिए, कलीसिया जो है उसके पांवों तले नहीं है। कलीसिया तो उसकी देह है, उसकी शरीर है। Under his kingship, he crushes his enemies under his feet, but he nourishes and cherishes his body, the church. उसके राजत्व में क्या होता है? वो अपने दुश्मनों को अपने पैरों तले कुचल देता है, लेकिन अपने शरीर अर्थात कलीसिया का पालन पोषण करता है। That's why Louis Berkhoff says, Christ now guides the destiny of individuals and nations, controls the life of the world, and makes it subservient to his redemptive purpose and protects his church against the dangers to which it is exposed in the world. उसीलिए लुइस बर्कॉफ नाम के एक बड़े शास्त्री कहता है, हर व्यक्ति और देश का मुकद्दर मसीह के हाथों में है।
वो इस दुनिया का जीवन को, इस दुनिया के जीवन को नियंत्रित करता है और उसे अपने उद्धार के उद्देश्यों के लिए अधीन बनाता है और अपनी कलीसिया को इस दुनिया से आने वाले खतरों से वो बचाता है। इस दुनिया को वो इस तरह चलाता है कि सारा फायदा कलीसिया को। The whole world he runs in such a way that his body or his church is taken care of. तो जो कुछ भी होता है वो हमारे भलाई के लिए करता है इस दुनिया में। Whatever he does in this world is for our good. Now, although the kingdom of God is a present reality, ये जो भले परमेश्वर का राज्य एक वर्तमान अनुभव है, इट इज ऑल्सो ए फ्यूचर होप। परमेश्वर का राज्य भविष्य की आशा भी है। क्यों ऐसा है? Why so? Because the kingdom of God will be consummated only at the second coming of Christ. क्योंकि परमेश्वर के राज्य का पूर्तिकरण या पूरी तरीके से वो स्थापित कब होगा? यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर। There are many New Testament verses which see entry into the kingdom of God as a future hope. देखिए, हमने पढ़ा कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। नए नियम में बहुत से ऐसे आयत भी है जो बोलते हैं हम प्रवेश करेंगे। We have read many verses which say we have entered into the kingdom of God. In the New Testament, there are many verses which say we will enter into the kingdom of God. कहाँ पढ़ सकते हैं हम उसको? मत्ती का 7वां अध्याय और 21वां आयत हम पढ़ेंगे। Let's read Matthew chapter 7 and verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यानी अभी प्रवेश करना बाकी भी है। So the entry into the kingdom of God is still pending. In what sense? किस अर्थ में? Let's read one more verse. एक और आयत हम पढ़ेंगे। 2 Timothy and chapter 4 and verse 18. दूसरा तिमोथी 4 अध्याय और 18वां आयत। The Lord will rescue me from every evil deed and bring me safely into his heavenly kingdom. To him be the glory forever and ever. Amen. तो वहां पर लिखा गया है, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। So spiritually we have entered the kingdom of God. आत्मिक रीति से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। Physically we are yet to enter the kingdom of God. शारीरिक रूप से अभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बाकी है। So when Jesus comes back, the kingdom of God will be consummated and it will become a visible or physical kingdom then. यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर परमेश्वर का राज्य का पूर्तिकरण या पूरी तरह वो स्थापित हो जाएगा और उस समय वो राज्य प्रत्यक्ष होगा, हम उसे देख पाएंगे और शारीरिक राज्य में बदल जाएगा। अभी एक आत्मिक राज्य है, वो एक शारीरिक राज्य में बदल जाएगा। It's a spiritual kingdom. It will turn into a physical kingdom. Read what Jesus says to his apostles in Luke 22 verse 28 to 30. आइए हम लूका के 22वें अध्याय और 28 से 30 में पढ़े। देखिए यीशु मसीह क्या बोलता है। You are those who have stayed with me in my trials, and I assign to you as my Father assigned to me a kingdom. He's talking to his apostles. That you may eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. The physical nature of the kingdom is seen there when he says that you will eat and drink with me at my table and sit on thrones there. वहां पर वो अपने प्रेरितों से कहता है, तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। वहां पर आप उसके शारीरिक राज्य की आप देख सकते हो। खाओगे पियोगे कब?
शारीरिक राज्य होगा तब खाओगे पियोगे, मेज कहाँ से आएगा? और क्या लिखा है वहां पर? और लिखा है सिंहासनों पर बैठोगे. सो देयर इज अ फिजिकल किंगडम दैट इज येट टू कम, एंड व्हेन दिस किंगडम इज कंज्यूमेटेड इट विल आल्सो बी अ परफेक्ट किंगडम. और जब ये राज्य जब पूरी तरह स्थापित हो जाएगा तब ये एक सिद्ध राज्य होगा. Let's read First Peter chapter 1 and verse 4. हम पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका चौथा आयत पढ़ेंगे. First Peter chapter 1 and verse 4. To an inheritance that is imperishable, undefiled and unfading, kept in heaven for you. अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है. Now Peter is saying that we are going to receive an inheritance which is kept in heaven or the kingdom of heaven, which is imperishable, undefiled, unfading. पतरस कहता है यहाँ पर कि हम एक मिरास को पाएंगे जो स्वर्ग में रखा गया है, यानी स्वर्ग के राज्य में रखा गया है. वो मिरास कैसा है? वो अविनाशी है, निर्मल है. निर्मल का मतलब है किसी भी प्रकार के प्रदूषण, पाप के प्रदूषण, पाप के असर से में नहीं है. अजर है, इट इज अनफेडिंग, वो धुंधला नहीं पड़ेगा. All that we have in this world is perishable, defiled by sin and it is fading away. हमारे इस दुनिया में हमारे पास जो कुछ भी है वो विनाशी है, पाप से दूषित हो चुका है और फीकी पड़ने वाली चीजें हैं. धीरे धीरे सब चीजें जाती रहेंगी. बट वॉट वी आर प्रॉमिस्ड इन द किंगडम ऑफ गॉड, लेकिन जिन बातों की प्रतिज्ञा परमेश्वर के राज्य में हमारे लिए की गई है वो अविनाशी है, निर्मल है और अजर है. ये इस बात को दिखाता है कि राज्य ऐसा है तो राजा कैसा होगा. इफ द किंगडम इज सो मैग्निफिसेंट, सो ग्लोरियस, व्हाट काइंड ऑफ अ किंग विल ही बी? हाउ ग्लोरियस ही विल बी. कितना महिमामय राजा होगा ऐसे राज्य का. उसीलिए आप स्वर्ग में जब यूहन्ना देखता है तो स्वर्गदूतों को उसकी आराधना करते देखते हैं. So when we see in Revelation, we see that the angels are falling in worship before this great king. कहाँ एक आखिरी आयत पढ़कर हम खत्म करेंगे. Revelation chapter 5 and verse 11 and 12. प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय और उसका 11 और 12. Then I looked and I heard around the throne and the living creatures and the elders the voice of many angels, numbering myriads of myriads and thousands of thousands, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है. We'll end here. हम यहाँ पर खत्म करेंगे. मसीह की शिक्षा अगले हफ्ते हम खत्म करेंगे. So next week we are going to end the doctrine of Christ.